See your textbook, see page number 290. 290 पे जो important points हैं, the first point is that we are unable to store products of protein metabolism. That is the nitrogenous waste products. So we have to eliminate them from the body. ये amino groups, they should be quickly eliminated from the body. Animals, they can excrete ammonia, they can excrete nitrogenous waste products in three forms, major three forms. Which three forms? Ammonia, urea and uric acid. Alright, now depending on उसकी lifestyle कैसी है, lifestyle मतलब whether it's an aquatic organism, it's a terrestrial organism, it's a semi-aquatic organism, या वो desert animal है, their mode of excretion will be different. क्यों mode of excretion अलग अलग है? Water, because water is a major factor in the elimination of these ammonia, urea and uric acid. अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए कितना पानी लगता है? 500 ml. हाँ, 500 ml लगता है. यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए कितना पानी लगता है? Yes, 50 ml. और यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए 10 ml. Alright. So this is a very important step to conserve water. Majority of the animals they evolve to excreting uric acid and urea. Now humans they excrete urea, but produce कहाँ पे होता है urea? Liver में. So this production of ammonia to urea takes place in the liver. लेकिन urea का excretion कहाँ से होता है? Kidney. So these two organs are playing a major role. One organ is playing a role in converting ammonia into urea. क्यों convert कर रहे हैं ammonia को urea में? हाँ, so that पानी conserve हो. On कर दो वो लाइट भी ऑन कर दो, so that पानी कंजर्व हो. और सेकेंड क्या? One is for conservation of water and second is retention in the body. Ammonia is less toxic than urea. It can be retained for ammonia is more toxic than urea, so urea can be retained in the body. Ammonia cannot be retained in the body. अगर बॉडी के पास पानी नहीं है तो यूरिया को रिटेन कर सकते हैं because it is less soluble in the body fluids. It is less soluble in water means it is less soluble in the body fluids. How many times यूरिया की toxicity कम है अमोनिया से? 1 lakh times. Alright, and then we did this chart. We did this chart in which we wrote the examples of all ammonotelic, ureotelic and uricotelic organisms. So अब ये इतने examples आपको पता होने चाहिए for your MCQs. There is no excuse to these examples. इसके बाहर का कुछ आएगा तो आपको कोरिलेट करना पड़ेगा कि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है या ये लैंड एनिमल है या ये सेमी एक्वेटिक है. यू विल हैव टू कोरिलेट. सो वंस वी आर डन विद एनिमल किंगडम चैप्टर वो कोरिलेशन और इजी हो जाएगा आपके लिए. ऑलराइट, दैट कोरिलेशन विल बिकम इजी व्हेन वी आर डन विद एनिमल किंगडम चैप्टर. सो ऑल दिस इज देयर ऑन पेज नंबर 290. 290 पेज नंबर देखो, उस पर ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको, वट एवर वी हैव डिस्कस्ड. Okay, more in the classwork, less points over here, but related points. Now come to page number 291. Page number 291 is telling you about the organism and the excretory structure in them. So ये जो examples NCERT textbook के हैं वो तो learn चाहिए ही चाहिए. So ये part है जो learn करना पड़ता है. There is nothing conceptual in this. इस part को आपको learn करना पड़ेगा and you will get this mostly in the match the following. So आपको मैच करना पड़ता है कि प्रोटोजोन्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा. सो अगेन दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये अगर एक बार करके रख लेते हो तो ये पैराग्राफ नहीं भी पढ़ा so you can just go through the chart. Chart gives you a concise form of this complete paragraph. The first paragraph on page number 291. Now coming to human excretory system. So, yes. They have nephridia. And earthworms are dual. What is dual mode of excretion? Ammonotelic and ureotelic. Earthworm के साथ और कौन है dual? Crocodile. Alright, so those are special examples जो dual mode of excretion के साथ आते हैं. Now coming to the human excretory system, you all know that it will have kidneys, ureters, urinary bladder, urethra, external orifice of the urethra from where the urine will go out of the body, and the blood vessels. So see now. किडनीज के बारे में ये सारी चीज़ें अगेन दे आर गिवन ऑन पेज नंबर 291. किडनीज का लेंथ, उसका विड्थ, उसकी थिकनेस, उसका वेट, द कलर,
the shape, the location towards the dorsal body wall, behind the peritoneum, इसीलिए बोलेंगे retroperitoneum. Alright, from T12 to L3, important MCQ, it often comes. The location, and right kidney is slightly lower than the left one. Why right kidney is at a lower position? Because of the liver. Alright, kidneys, they are 2 in number, that you all know. So now if we see this, where is that pen? Alright. So kidneys, on the inner side they are concave and outer side they are convex. Again, that is an MCQ. And hilum is on which surface? Outer convex or inner concave? Inner concave. So ये MCQ बहुत ध्यान से mark करना पड़ता है. Blood vessels and ureters, they enter and leave the kidney through this hilum. Just behind the hilum, ये वाला region क्या रहेगा? It is the pelvis. It will be the pelvis. Next, now we have done this complete human excretory system. See which kidney is placed lower? Right kidney. What is the triangular structure over the superior surface? Adrenal gland. What is leaving and entering through the hilum? Blood vessels and ureters. They enter the urinary bladder at an angle. Why this angle? To prevent backflow of urine. Alright? And urinary bladder opens through the urethra. Length of the urethra in males is 20 centimeters. In females is 4 centimeters. What is the difference in the length of the urethra? 16 centimeters. Which orifice is under our control, under our voluntary control? External. So it is made up of which muscle? Skeletal muscle. And internal will be made up of smooth muscle. Okay? So adrenal gland is there. Adrenal gland कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? Which we have seen, aldosterone. Kidney कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी? Renin. Right? Sure. Ureters का length 20 to 25 centimeters. Do you remember any other tube in the body which is around 20 to 25 centimeters in length? Digestive system. What is the length of esophagus? Yes, what is the length of esophagus? 25. Comes in this range. Okay, so 20 to 25 centimeter के length में esophagus भी आता है. Esophagus starts from where? Buccal cavity, pharynx के बाद, and it opens into the कौन सा sphincter? Cardiac sphincter. All right. So चलो, urinary bladder, it's a pear-shaped organ. It's a pear-shaped organ, and it is going to have 2 incoming chambers and 1 exiting chamber. 2 incoming chamber कौन से? Ureters. 1 exiting chamber कौन सा? Urethra. So total 3 chambers will be leaving from there. The urethra will have 2 sphincters. This we discussed. Now, if we see the longitudinal section of the kidney, it is divided into cortex and medulla. Hilum की तरफ कौन सा? Medulla. और convex surface की तरफ कौन सा? Cortex. Medulla, it is divided again into what? These structures are called medullary pyramids. They are also called renal pyramids. Renal pyramids. So then this space between the pyramids where the cortex extends, this is called renal columns or columns of Bertini. Now what are these structures which you can see over here? These lines. Collecting duct. Okay. What opens into the collecting duct? क्या open होता है? DCT. कितने nephrons का DCT? Many nephrons का DCT. Okay. Collecting ducts कहाँ पे आके merge होती हैं? Cortex में कि medulla में? Medulla में. And they form one common duct जिसका नाम क्या है? Duct of Bellini. Duct of Bellini. Alright. Duct of Bellini कहाँ open होगा? Minor calyx. Minor calyx 2-3 मिलके कहाँ open होंगे? Major calyx. And all the major calyxes will open into pelvis. Pelvis will further open into the ureter. That is how is the flow of urine in the kidney. You should know all these terms: renal columns, columns of Bertini, renal pyramids, pelvis, minor calyx, major calyx, Bertini, duct of Bellini. You should know all these. So see, this is the flow of urine. Collecting duct से duct of Bellini, minor calyx, major calyx, pelvis, ureters, urinary bladder. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है बेटा तो अभी क्लियर करो. चलो next. See next there. The coverings of the kidney. The innermost is renal capsule. उसके बाद adipose tissue and then renal fascia.
So kidney is covered by these 3 layers which protect the kidney from any injury. How many nephrons are present in one kidney? हाँ, so now we are on page number 292. 291 पे पूरा excretory system दिया हुआ है. अब हम हैं पेज नंबर 292 पे. There you will see about this how many nephrons are present in each kidney. तो body में होंगे 2 million. Okay? And nephron, it is the structural and functional unit of the kidney. It will be made up of 2 parts. सबसे पहले 2 parts. उसके बाद these 2 parts will be divided into glomerulus and renal tubule. Renal tubule is divided into how many parts? 4 parts. Which 4 parts? Bowman's capsule, PCT, loop of Henle, DCT. Okay. So nephron is divided into 6 parts. ऐसा नहीं लिखते. Nephron is divided into 2 parts. First is the glomerulus, second is the renal tubule. यहाँ पे mistake होती है MCQ में. हम 6 parts कर देते हैं because we count everything and we mark 6. But prima facie it will be divided into 2 parts and then this renal tubule will be divided into 4 parts. So ये 4 plus 2 6 होता है. Now if you see what is glomerulus, it is the tuft of capillaries. कौन सी branch, कौन सी artery बनाएगी? Renal artery की कौन सी branch? Efferent artery. So the one that is forming the glomerulus is the efferent arteriole. और glomerulus से कौन निकलेगा बाहर? Efferent arteriole. So you should know what is the glomerulus. How many capillaries in this bunch? 50 to 100. Okay. Next is the efferent arteriole. It will come. Efferent arteriole. It will leave. ये efferent और efferent कैसे याद रखेंगे? It is same as the nerves. आने वाली nerve will be efferent and वापस जाने वाली will be motor. That is efferent. So next we have seen renal tubule. You know these parts. नीचे आने वाला descending limb of loop of Henle. ये MCQ बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए. नीचे आने वाला descending limb, ऊपर जाने वाला ascending limb. So see this. We will always divide this into cortex and medulla so that we understand कि medullary structures कौन से होंगे? Loop of Henle and collecting duct. But collecting duct cortex में भी होगा. It is a long duct which extends from cortex to medulla. So medullary structures में भी collecting duct आएगा, cortical structures में भी collecting duct आएगा. उसके अलावा cortical structures में क्या आएगा? Glomerulus, Bowman's capsule, PCT और DCT. Loop of Henle will always come in the medullary structures. Along with that, the collecting duct will come. Okay, sure. Next देखो. So we saw what are cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. इनके साथ हमने peritubular capillary network भी देखा. And this branch from this peritubular capillary which comes down is vasa recta. Vasa recta कहाँ पे present रहेगा? Juxtamedullary nephrons. How many percentage of juxtamedullary nephrons is there? 15%. So more nephrons in the human kidney are cortical nephrons. Less nephrons are juxtamedullary nephrons. क्या काम करते हैं juxtamedullary nephrons? Yes, concentration of urine. They help to maintain the osmolarity of what? Medullary interstitial. Along with the loop of Henle, they help to maintain the osmolarity of medullary interstitial. Alright? Then we saw the renal blood flow. कि कैसे होगा? So usually body में capillaries, arteriole के बाद capillaries बनती है और उसके बाद ये capillaries join करके venule बनाती है. But यहाँ पे ये capillaries join करने के बाद फिर से एक arteriole बनाएगी, which will be carrying oxygenated blood. तो glomerulus में से जो blood filter नहीं हुआ, वो जाता है efferent arteriole के through बाहर. Whatever is not filtered, it will go through the efferent arteriole. Alright? So then next we saw about the glomerulus, the peritubular capillary network. किसका branch है ये peritubular capillary? Yes, efferent arteriole. And where it will be found? Surrounding PCT and DCT. So this will be found in the cortex. Again, this is an MCQ. Vasa recta कहाँ मिलेगा? Medulla में. And peritubular capillary network कहाँ मिलेगा? Cortex. Glomerulus कहाँ मिलेगा? Cortex. So amongst glomerulus, peritubular capillary network and vasa recta, which one will be found in the medulla? Vasa recta. ये दोनों cortex में मिलेंगे. Right? Sure. So next is vasa recta. Yes. ब्लड डीऑक्सीजनेट कैसे होगा? नीचे टिश्यू के लेवल पे एक्सचेंज होगा. ओके, एंड देन वेन्यूल्स लेके जाएंगे. नेक्स्ट, एपिथेलियम इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल.
ग्लोमेरुलस का तो हमको पता है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोथेलियम. Blood vessels, they are lined by single layer of squamous epithelium. Next is Bowman's capsule. It is going to be double layered. So inner layer कौन सी रहेगी? जो ग्लोमेरुलस के पास है. Okay, जो ग्लोमेरुलस के पास है वो inner layer रहेगी. We call it the visceral layer. And the outer layer is called parietal layer. Visceral layer में some specialized cells will be there, which are podocytes. उसके अलावा क्या रहेगा visceral layer? Slit pores. Okay, and parietal layer will have what? Squamous epithelium. So squamous epithelium के ही modified cells which are present in the visceral layer, they are called podocytes. ये किस में help करेंगे? Filtration. Which two structures take part in ultrafiltration? Glomerulus and Bowman's capsule. Bowman's capsule इसके बाद कोई रोल प्ले करने वाला है क्या रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में? नो. It only takes part in ultrafiltration. रीएब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं होगा, सिक्रीशन कुछ भी नहीं होगा. ऑलराइट, अगेन एमसीक्यूज. रीएब्जॉर्प्शन में जब पूछा है तो वो बोमेन्स कैप्सूल में कुछ भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा. नाउ पोडोसाइट्स, दीज आर स्पेशल एपिथेलियल सेल्स. They have these leg-like processes and they are modified squamous cells which are present in the visceral layer of Bowman's capsule. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये तीन चीज़ें मिलके बनाते हैं. कौन सी तीन चीज़ें? कैपिलरी एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल. इट फॉर्म्स अ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जिससे फिल्ट्रेट होके ब्लड यहाँ पे आके जमा होता है. एंड दिस फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. और क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी यूरिन और डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, रीनल फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट. ऑल दीज आर वर्ड्स टू दैट फिल्ट्रेट विच इज फॉर्म्ड. पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहेगा, बट वी नो कि पीसीटी कितना काम करता है रीएब्जॉर्प्शन का? 70 to 80%. So it is going to have epithelium which is going to have microvilli. क्या काम करेंगे माइक्रोविलाई? They will increase the surface area so that maximum reabsorption हो सके. Yes, and they spend more energy also क्योंकि ये active reabsorption करते हैं. किसका active reabsorption करते हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये वाले हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करते हैं. सो दे रिक्वायर एनर्जी ऑल्सो. देन डिसेंडिंग लिम्ब, इट विल हैव सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. यहाँ से क्या डिफ्यूज होके बाहर आएगा? वाटर. इट इज परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स. असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सॉल्ट्स एंड इम्परमिएबल टू वाटर. सो इसमें से एक ही याद रखना है. दोनों याद रखे तो दोनों कंफ्यूज होते हैं. एक याद रखो, दूसरा उसका ऑपोजिट है, ऐसे ही याद रखेंगे. अगेन डीसीटी विल बी हैविंग सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, असेंडिंग लिम्ब विल बी हैविंग सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. यस, हाँ मैं बताती हूँ वो क्वेश्चन ABCD जो है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी. बॉडी डज द वर्क ऑफ एक्सक्रीशन, but does it only do the work of excretion? No. It will do first what? Maintain the osmolarity. किसकी osmolarity? Body fluids की. Major body fluid is the blood. So we speak in terms of blood. We speak in terms of plasma more specifically. Why? Because blood is blood cells and plasma. उसमें water किस में है? Plasma में. Electrolytes किस में है? Plasma में. So we speak in terms of blood, or more specifically we speak in terms of plasma. प्लाज्मा से ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, आइसोटोनिक रखना है बॉडी फ्लूइड्स को, उसके हिसाब से वाटर का एक्सक्रीशन होगा. सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपोटोनिक, व्हाट इज हाइपरटोनिक एंड व्हाट इज आइसोटोनिक, बिकॉज दीज वर्ड्स दे विल कम इन द चैप्टर थ्रू आउट. आइसोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है. ऑलराइट, ये सब जगह पे आएगा. सो नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 293. हमने ऊपर का पार्ट किया, व्हाट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, व्हाट इज जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, एंड नाउ वी आर ऑन द लास्ट पैराग्राफ, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन. वी विल कम टू द फर्स्ट स्टेप, दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन में तीन चीज़ें काम करती है. कौन सी तीन चीज़ें? फर्स्ट, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. सेकेंड फिल्ट्रेशन प्रेशर, एंड थर्ड blood flow to the kidneys which will relate to amount of filtrate form. तीन चीज़ों की बात करते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में. फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन.
In ultrafiltration, basically you should know about the filtration membrane, so you know about it. You should know about the filtration pressure and you should know what is the amount of filtrate formed. ये तीनों चीज़ें काम करेगी अल्ट्राफिल्ट्रेट बनाने में, which is also called glomerular filtrate, right? So now we will see about the filtration pressure. कहाँ से बिल्डअप होता है प्रेशर? बिकॉज एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर बड़ा है, इसमें जो ब्लड आ रहा है उसको डाइवर्ट कर दिया छोटी छोटे पाइप्स में, तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है. कैपिलरी बेड में प्रेशर बिल्डअप हो जाता है. कितना रहता है वो प्रेशर? 55. अगर इसको कोई ऑपोजिंग प्रेशर नहीं रहते तो ब्लड 55 पे ही फिल्टर होता था. बट वी हैव सीन कि इसको ऑपोजिंग प्रेशर्स हैं, इसको रेजिस्ट करने वाले प्रेशर्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे. कौन सा है रेजिस्टिंग प्रेशर? यस, BCOP and FHP. What is BCOP? Full form blood colloidal osmotic pressure. कहाँ से आया वो blood colloidal osmotic pressure? See, colloidal is related to proteins. Okay, so plasma proteins जो filter नहीं होते हैं, blood cells जो filter नहीं होते हैं, वो वहाँ पे छन्नी पे आ जाते हैं. Like we spoke, जब हम चाय छानते हैं तो चाय पत्ती छन्नी पे जमा हो जाती है. क्यों? Because large diameter है, वो filter नहीं हो सकता है. वैसे ही ये प्लाज्मा प्रोटीन्स दे के नॉट फिल्टर, द ब्लड सेल्स दे के नॉट फिल्टर, तो वो वहाँ पे छन्नी पे जमा हो जाएंगे. एंड जितने ज़्यादा ब्लड सेल्स जमा होते जाएंगे वो रेजिस्ट करेंगे फिल्ट्रेशन. सो दिस इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. इसकी वैल्यू कितनी है? 38. इज इट अ पॉजिटिव प्रेशर विच फेवर्स फिल्ट्रेशन और इट इज़ एन अपोजिंग प्रेशर? इट इज़ एन अपोजिंग प्रेशर जो रेजिस्ट करता है फिल्ट्रेशन को. नेक्स्ट फैक्टर विच रेजिस्ट फिल्ट्रेशन इज जितना ज़्यादा ये कप भरता जाएगा, ये अंदर का फ्लूइड, अंदर आने वाले फ्लूइड को अपोज करेगा. जितना ज़्यादा ये कप फिलअप होता जाएगा, वो वाला फ्लूइड बाहर से आने वाले फ्लूइड को अपोज करेगा. दैट इज फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब कैप्सूल में जो जमा हो गया है, वो मीन्स कैप्सूल में जो जमा हुआ है वो जो एग्जर्ट करेगा. दिस इज अगेन फेवरिंग फिल्ट्रेशन और रेजिस्टिंग. इट इज रेजिस्टिंग, इट इज ऑपोजिंग. क्या वैल्यू है इसकी? 15 mmHg. सो अब हमको निकालना है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव में से नेगेटिव वालों को माइनस करेंगे. ऑलराइट, पॉजिटिव इज 55, नेगेटिव इज दिस 30 + 50. सो 55 में से 45 माइनस करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी आवर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. सो एक्चुअली फिल्ट्रेशन कितने प्रेशर पे होता है? 10 mmHg. ऑल्दो 55 इज अवेलेबल, बट 55 को जो रेजिस्टिंग प्रेशर्स हैं वो हटा के इट बिकम्स 10 mmHg. ये सारी वैल्यूज यू शुड नो बिकॉज इट कम्स टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे छोटी किसकी वैल्यू? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. उसके बाद किसकी वैल्यू? FHP. उसके बाद BCOP और उसके बाद. तो अगर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या आएगा? GHP, second BCOP, third FHP and fourth NP. If you have to arrange them in ascending order, छोटे से बड़ा जाएंगे, descending order बड़े से छोटा है. So ये arrange करने के लिए आता है. So you should know these individual pressures. You should know which are the opposing pressures and which is the positive pressure which favors. Alright, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. Now, filtrate which is formed is called with all these names. So MCQ में इनमें से कोई भी नाम लिखा रहा, you should understand that it is referring to glomerular filtrate and its composition. It will be isotonic to plasma MCQ. Isotonic मतलब osmolarity will be same as that to plasma, and it is going to have all that the plasma is having except what? Plasma proteins. Why the plasma proteins are not filtered? Because of their large diameter. Filtration membrane does not allow them to come inside. सो अगर हम प्लाज्मा के टर्म्स में देखेंगे फिल्ट्रेट को, इट विल बी प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स. लेकिन अगर हम ब्लड के टर्म्स में देखेंगे तो ब्लड सेल्स भी हटाने पड़ेंगे. आर यू गेटिंग इट? सो MCQ को आपको चेक करना है. इफ MCQ इज आस्किंग इन टर्म्स ऑफ प्लाज्मा, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन्स हटाएंगे. MCQ इज आस्किंग इन टर्म्स ऑफ ब्लड, तो ब्लड सेल्स को भी हटाना पड़ेगा बिकॉज वो भी फिल्टर नहीं होंगे. ऑलराइट, चलो. सो नेक्स्ट इज द ब्लड फ्लो. कितना ब्लड आता है किडनी के पास? 1 मिनट. दोनों किडनीज के पास मिला के कितना ब्लड आता है? 1100 to 1200. इट इज़ फॉर बोथ द किडनीज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ.
तो एक किडनी के पास कितना आएगा 600. ओके, वी आर ऑन पेज नंबर 293 का लास्ट पैराग्राफ. पेज नंबर 293 का लास्ट पैराग्राफ where the filtration membrane is given. दोनों में पूछ सकते हैं, ऐसा कोई उसका वो नहीं है. ऑलराइट, सो वन किडनी में पूछा तो 600 ml per minute होगा. वी हैव टेकन आउट दिस वैल्यू, इसको हाफ करके. बट जब हम रीनल ब्लड फ्लो बोलते हैं तो इट इज फॉर बोथ द किडनीज. ओके, रीनल ब्लड फ्लो, व्हेन वी से दिस टर्म इज यूज्ड फॉर बोथ द किडनीज, इट इज यूज्ड फॉर द कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम. Now, this is how much of the cardiac output? 20%, 1/5 of the cardiac output. What is cardiac output? It is stroke volume into heartbeat. What is stroke volume? Amount of blood pumped out by the ventricles in a minute or per heartbeat? Per heartbeat. How much is it? 70 ml. And how many heartbeats in 1 minute? 72. तो हम करते हैं 70 into 72 which is approximately 5000 ml और 5 liters. सो हमने इसको कंपेयर किया है कार्डियक आउटपुट से, क्योंकि कार्डियक आउटपुट क्या है, एक मिनट में जो ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा है. तो हार्ट से बाहर अगर 5000 ml निकल रहा है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास कितना ब्लड आता है एक मिनट में? 1100 to 1200 ml, which is 20% of the cardiac output. इसमें से फिल्टर कितना होता है? 125 ml पर मिनट. इज इट फॉर वन किडनी और बोथ द किडनीज? बोथ द किडनीज. बोथ द किडनीज मतलब कितने नेफ्रॉन्स मिलके इतना ब्लड फिल्टर करते हैं? 2 मिलियन. कितने नेफ्रॉन्स मिलके इतना ब्लड फिल्टर करते हैं? 2 मिलियन, बिकॉज इट इज गिवन फॉर बोथ द किडनीज. अगर पर मिनट की वैल्यू हमारे पास है तो हम पर डे की फाइंड आउट कर सकते हैं, हम 1 आवर की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम 5 आवर्स की भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज़ सिंपल कैलकुलेशन. ऑलराइट, सो पर मिनट की वैल्यू पता है तो MCQ कोई भी वैल्यू पूछेगा आप बता सकते हो. पर मिनट और पर डे ये जो NCERT में दिए हुए हैं ये तो आपको लर्न रहने ही चाहिए. देयर शुड बी नो मिस्टेक ओवर हियर. इसके अलावा 10 डेज पूछा, 1 डे पूछा तो यू हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, इतना फिल्टर होता है 180 लीटर्स पर डे. ये फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन एक्सक्रीशन कितना होता है बॉडी से? 1 to 1.5 लीटर्स. दैट मीन्स हाउ मच % ऑफ द फिल्ट्रेट इज टेकन बैक? ओनली 1% गोज फॉर एक्सक्रीशन, 99% इज टेकन बैक. राइट, सो फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होके यूरिन एक्सक्रीट होता है सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर्स. सो नाउ कम टू पेज नंबर 294. पेज नंबर 294. सो यहाँ पे है एवरीथिंग अबाउट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये वाला पॉइंट NCERT टेक्स्ट बुक में नहीं है बट स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में यू विल सी. ओके, नेक्स्ट नाउ, अगर ये GFR कम हो गया, इफ द GFR इज लेस, तो फिर क्या होता है? और GFR इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? इट इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रेशर. अगर ये दोनों कम हो गए तो GFR क्या होगा? कम होगा. ये दोनों बढ़ गए तो GFR क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा. तो कौन सेंस करता है कि GFR कम हो गया है? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस. कहाँ पे है ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस? किडनी में. कौन से पार्ट्स ऑफ द किडनी? कौन से पार्ट ऑफ द किडनी? DCT एंड एफरेंट आर्टरी. DCT वाले सेल्स को क्या बोलते हैं? मैक्यूला डेंसा. और एफरेंट आर्टरियोल वालों को जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स. ये क्या कराते हैं? रिलीज कराते हैं रेनिन का. रेनिन क्या करता है आगे? एंजियोटेंसिनोजेन टू एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2. ऑलराइट, एंजियोटेंसिनोजेन कहाँ प्रेजेंट है? लिवर में. ओके, और एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं ब्लड में. ये एक्टिवेट होते हैं जब रेनिन रिलीज होता है. Converted into angiotensin 2, but angiotensin 2 is already present in the blood. It is activated by that ACE. Okay, angiotensinogen is converted to angiotensin 1, and then angiotensin 1 it activates angiotensin 2 which is present in the blood. लगता है angiotensin converting enzyme ACE. Now this angiotensin 2 के 3 फंक्शन है. क्या 3 फंक्शन है?
फर्स्ट इज वैसोकंस्ट्रिक्शन, जिससे बीपी इंक्रीज होगा. सेकेंड हाँ, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. थर्ड secretion of aldosterone. Aldosterone क्या करेगा? Increase reabsorption of sodium and water. Sodium and water. So now, who is going to keep a check on this renin angiotensin ANF? ANF क्या करेगा? जो बीपी को बढ़ाया है रास ने, उसको कम करेगा. So ANF क्या रहेगा? Vasodilator या vasoconstrictor? Vasodilator. So check now over here. ANF कब सिक्रीट होगा? जब बीपी ज़्यादा है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, बियॉन्ड लिमिट्स बढ़ रहा है, और ANF का एक्शन क्या होगा? डिक्रीज करके देगा. ये MCQs यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं. MCQ पूछता है ANF कब सिक्रीट होगा, ANF कब सिक्रीट होगा, और हम क्या मार्क करते हैं कि वो ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा, बीपी को डिक्रीज करेगा. बिकॉज व्हाट वी थिंक ANF इज अ वैसो डायलेटर, तो बीपी को डिक्रीज करेगा. बट MCQ इज आस्किंग कि ANF सिक्रीट कब होगा, ANF एक्शन में कब आएगा. एक्शन में कब आएगा? जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है. और एक्शन क्या करके देगा? ब्लड वॉल्यूम को कम करके देगा. सिमिलरली एंजियोटेंसिन 2, ये एक्शन में कब आएगा? जब ब्लड वॉल्यूम कम है, बीपी कम है. क्योंकि जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कब एक्टिवेट होंगे? जब बीपी कम है. ऑलराइट. और ये करके क्या देगा? इंक्रीज करके देगा बीपी, GFR को इंक्रीज करके देगा. सो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, पेज नंबर 297. I want all of you to read the second paragraph of page number 297 of regulation of kidney function. Quickly. Switch off. Okay. वो fan switch off करो. नहीं, उसके बाद जो aldosterone adrenal glands. Aldosterone is from the adrenal gland. तो वो स्टिम्युलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को टू सिक्रीट एल्डोस्टेरोन. रीड द पैराग्राफ ऑफ juxtaglomerular apparatus plays a complex regulatory role. Fall in GFR activates the JG cells to release renin, which converts angiotensinogen in blood to angiotensin 1 and further to angiotensin 2. Angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor, increases the glomerular blood pressure and thereby the GFR. Angiotensin 2 also activates adrenal cortex, मतलब adrenal gland का cortex वाला part, to release aldosterone. Aldosterone causes reabsorption of sodium and water from which parts of the tubule? Distal parts of the tubule. This also leads to an increase in blood pressure and GFR. Complex mechanism is called renin angiotensin aldosterone mechanism. Now next paragraph. Increase in blood flow to the atria of the heart. देखो, जब blood flow increase होगा तब क्या release होगा? ANF. और जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा था तब क्या रिलीज हो रहा था? रेनिन, जो आगे जाके एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करेगा. आर यू गेटिंग इट? तो कब रिलीज होगा? यस, आई विल कम टू इट. कब रिलीज होगा? जब बीपी हाई है. और वो करेगा क्या? ANF causes vasodilation, dilation of the blood vessel and thereby decreases the blood pressure. ANF mechanism therefore acts as a check on the renin angiotensin mechanism. What is natriuresis? Passing of more sodium in urine. मतलब सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को कम करेगा. Now see, ANF vasodilation करता है, तो किसको एंटागोनिस्टिक है? ANF vasodilation करता है, तो कौन वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहा था? उसको एंटागोनिस्टिक होगा वो, नंबर 1 एंजियोटेंसिन 2 को. और ANF क्या कर रहा है? नाट्रियूरेसिस कर रहा है, इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन. तो वो किसको उल्टा कर रहा है? एल्डोस्टेरोन. बिकॉज एल्डोस्टेरोन क्या करता है? इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम. अगर इंक्रीज किया रीएब्जॉर्प्शन सोडियम का, तो यूरिन में सोडियम का एक्सक्रीशन कम होगा. ANF क्या कर रहा है? यूरिन में सोडियम को भेज रहा है. सो दैट इज नाट्रियूरेसिस. तो अगर ANF नाट्रियूरेटिक हार्मोन है, तो एल्डोस्टेरोन क्या है? एंटी नाट्रियूरेटिक हार्मोन. एंटी नाट्रियूरेटिक मीन्स
मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम का, सोडियम को एक्सक्रीशन के लिए नहीं जाने देगा। ये आप आपके पास हिंदी में लिख के रखो जैसे लिखना है। एंटी नाट्रीयूरेटिक मीन्स रीएब्जॉर्प्शन सोडियम का बढ़ाएगा और सोडियम को एक्सक्रीशन के लिए नहीं जाने देगा। दैट इज एंटी नाट्रीयूरेटिक। कौन सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है? एल्डोस्टेरॉन। इसका ऑपोजिट हार्मोन है नाट्रीयूरेटिक हार्मोन। नाट्रीयूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ाएगा, मतलब रीएब्जॉर्प्शन कम करेगा। नाट्रीयूरेसिस इज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, Na in natriuresis is for sodium, excretion of sodium in urine। ये MCQ में कंफ्यूज होता है, इसीलिए हिंदी में आपके पास ये स्टेटमेंट चाहिए लिखा हुआ। एंटी नाट्रीयूरेटिक मीन्स सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, बॉडी से सोडियम को कम जाने देगा। एंटी नाट्रीयूरेटिक मीन्स सोडियम के एक्सक्रीशन को कम करेगा। अगर एक्सक्रीशन को कम कर रहा है मतलब रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। कौन बढ़ाता है सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को? एल्डोस्टेरॉन। इसी का एंटागोनिस्टिक हार्मोन होगा ANF। ANF क्या करेगा? नाट्रीयूरेसिस बढ़ाएगा, मतलब रीएब्जॉर्प्शन कम करेगा। ऑलराइट, so this is natriuretic hormone. ANF comes from atrial natriuretic hormone. Why atrial in that? It is secreted by atria of the heart. Because blood कहाँ रिटर्न होता है हार्ट में? कौन से चेम्बर्स में? एट्रिया में। सो एट्रिया कैन सेंस कि ये जो ब्लड है बहुत हाई प्रेशर पे आ रहा है, सो इट इज गोइंग टू रिलीज दैट एट्रियल नाट्रीयूरेटिक फैक्टर। कौन सा हार्मोन कब रिलीज होगा और उसका एक्शन क्या होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली MCQ में पढ़नी पड़ती है। यू हैव टू रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली। हार्मोन वाले जो भी MCQs रहेंगे वो 2 बार रीड करना। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, कि वो कब रिलीज होता है या वो क्या एक्शन करता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इस पर सिंपल MCQ रॉन्ग होता है। सो बी वेरी केयरफुल ओवर देयर। नेक्स्ट, रीड दैट फर्स्ट पैराग्राफ ऑल्सो। अब हमने एक तीसरा हार्मोन भी देखा है जो पिक्चर में आता है, विच इज व्हाट? ADH, विच इज रिलेटेड टू द ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम कम, BP कम, देयर कैन बी सम फैक्टर्स। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा, BP ज़्यादा, देयर कैन बी सम फैक्टर्स। ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी ये काम करेंगे दोनों कंडीशंस में। विल दे वर्क ओनली व्हेन द ब्लड वॉल्यूम इज लेस? नो, दे विल वर्क व्हेन देयर इज चेंज इन द बॉडी वॉल्यूम। या तो वो कम है या तो वो ज़्यादा है। ये सेंटेंस देखो इन द NCERT टेक्स्ट बुक। ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। एंड आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन एंड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम मतलब लो ब्लड वॉल्यूम, लो BP, they will send positive feedback to hypothalamus to release what? ADH। हाइपोथैलेमस ADH सिक्रीट करता है और वो स्टोर कहाँ पे रहता है? कौन से पिट्यूटरी में स्टोर होता है वो हार्मोन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये पैराग्राफ देखो आगे। It can activate these receptors which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone ADH। उसका दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, प्रेस करेगा ब्लड वेसल्स को, ऐसे याद रखना है। फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ADH facilitates water reabsorption from later parts of the tubule, thereby preventing diuresis। diuresis मतलब dilute urine, dilute urine। ओके, तो ADH क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्टर है कि वैसोडाइलेटर है? वैसोकंस्ट्रिक्टर। BP को बढ़ाएगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन करेगा पानी का फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। इसीलिए हमने बोला था कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। कंडीशन के हिसाब से कितना रीएब्जॉर्प्शन होगा, दैट विल बी डिपेंडेंट। नेक्स्ट नाउ, ADH facilitates water reabsorption. We saw this point. It will prevent diuresis and increase in body fluid volume. Can switch off the osmoreceptors. Osmoreceptors switch off होके negative feedback देंगे hypothalamus को to suppress the release of ADH। बहुत ज़्यादा बॉडी में पानी है,
सफिशिएंट बॉडी वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है, डू वी नीड ADH? नहीं. सप्रेस करो उसके रिलीज को, कम करो उसके सिक्रीशन को. सो ADH का सिक्रीशन कम कब होगा? जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा है या सफिशिएंट है. और ADH का सिक्रीशन बढ़ेगा कब? जब ब्लड वॉल्यूम कम है, BP कम है. ऑलराइट. So ADH, increase in body fluid volume, can switch off the osmoreceptors and suppress the ADH release to complete the feedback. एक पॉजिटिव फीडबैक होता है, दूसरा नेगेटिव फीडबैक होता है. जब कम है तो पॉजिटिव फीडबैक काम करेगा, जब वापस रिस्टोर हो गया ज़्यादा पे तो नेगेटिव फीडबैक. तो ये फीडबैक कंप्लीट होता है. ADH can also affect the kidney function by its constrictory effect on blood vessels. BP को बढ़ाएगा, vasoconstriction. This causes an increase in blood pressure. An increase in blood pressure can increase glomerular blood flow and thereby the GFR. So हमने कितने हार्मोन्स देखे हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में? एक रेनिन, दूसरा एंजियोटेंसिन नोजेन, तीसरा एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरॉन एंड ADH एंड ANF. ANF कहाँ से? हार्ट से. एल्डोस्टेरॉन कहाँ से? हाइपोथैलेमस से. एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा? एल्डोस्टेरॉन. और रेनिन कहाँ से? किडनी से. और एंजियोटेंसिन 2 कहाँ पे? ब्लड में. एंजियोटेंसिनोजेन लिवर में, एंजियोटेंसिन 1 और 2 इन द ब्लड. ऑलराइट. ये हार्मोनल पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. नेक्स्ट, अगर रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो फिल्ट्रेट कहाँ से कहाँ जाएगा? कहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम टिब्यूल टू बॉडी. इंपॉर्टेंट MCQ. रीएब्जॉर्प्शन मतलब बॉडी में वापस खींचना, मतलब फिल्ट्रेट से ब्लड में डालना वापस. फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में डालेंगे. ऑलराइट. बोमेंस कैप्सूल में नो रीएब्जॉर्प्शन. बाकी का सारा टिब्यूलर पार्ट विल एक्ट इन रीएब्जॉर्प्शन. चीज़ें वहाँ से रीएब्जॉर्ब होगी. तो PCT से 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन होगा. कौन से सब्सटेंसेस? ये सारे सब्सटेंसेस. MCQ आता है मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? PCT से. ऑलराइट. उसके बाद विच प्लेज मिनिमम रोल इन रीएब्जॉर्प्शन? लूप ऑफ हेनरी. बट इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन व्हाट? यस, दिस इज अ लाइन ओवर हियर, पेज नंबर 294. फंक्शन ऑफ द टिब्यूल्स की फर्स्ट लाइन देखो. ये वाला MCQ में भी था, ये सेंटेंस वर्कशीट में भी था. रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब. हाउएवर this region plays a significant role in maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन का काम मिनिमम है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट रोल किस में प्ले कर रहा है? ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर. ये लाइन है पेज नंबर 294, हेनलेज लूप की फर्स्ट लाइन. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ओके. Descending limb is permeable to water. Ascending limb is permeable to salts. Descending limb से अगर पानी निकलेगा तो अंदर का फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक पानी निकलता जाएगा. तो और यहाँ से जब फिल्ट्रेट जाएगा, सॉल्ट्स बाहर निकल रहे हैं तो फिल्ट्रेट हो जाएगा वापस हाइपोटोनिक और ऊपर जाते जाते आइसोटोनिक टू प्लाज्मा. Okay, this is about ADH, antidiuretic hormone. सिक्रीशन में हम क्या करते हैं? फ्रॉम बॉडी टू टिब्यूल, मतलब ब्लड टू फिल्ट्रेट. अगर लिक्विड सोल्यूशंस के टर्म में बात करनी है तो ब्लड टू फिल्ट्रेट, फ्रॉम बॉडी बैक टू द फिल्ट्रेट. क्यों कर रहे हैं आखिरी में ये फाइनल एडजस्टमेंट, द लास्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी. ओके, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी. सो इफ यू सी दिस सेंटेंस 294 पे, फंक्शन ऑफ द टिब्यूल्स के जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ. ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, ट्यूबुलर सेल्स secrete substances like H positive, K positive and ammonia into the filtrate. Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in what? Maintenance of ionic and acid base balance of the body. ये आखिरी का एडजस्टमेंट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बॉडी का आयोनिक और एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना है. इसीलिए अगर हमने बहुत सारा सोडियम बाहर निकाला है तो अंदर क्या डालना पड़ेगा? पोटेशियम, टू मेंटेन सोडियम पोटेशियम बैलेंस ऑफ द ब्लड. देखो लास्ट लाइन ऑफ पेज नंबर 294.
DCT वाला लास्ट लाइन, selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH, और क्या मेंटेन करना है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस ऑफ द ब्लड. जितना ज़्यादा सोडियम बॉडी में रखेंगे, एक्सक्रीशन के लिए किसको भेजेंगे, पोटेशियम को. अब MCQ आता है, बॉडी गेट्स, ध्यान से सुनो ये सेंटेंस, बॉडी गेट्स रिड ऑफ इट्स पोटेशियम आयंस in an attempt to preserve what? सोडियम. जितना ज़्यादा बॉडी सोडियम को रखेगी, एक्सक्रीशन के लिए किसको भेजना पड़ेगा, पोटेशियम. इसीलिए यू विल सी दैट एवरीवेयर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में पोटेशियम ऐड ऑन होता है. पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस ये अंदर आते हैं. अगेन हाइड्रोजन आयंस क्यों, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने के लिए. ओके, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयंस को वापस डाल देंगे फिल्ट्रेट. दिस अगेन डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, बॉडी की कंडीशन क्या है उसके हिसाब से. ऑलराइट, अब इसका वो जो हमने चार्ट बनाया था, पीसीटी से क्या रीएब्जॉर्ब होगा, क्या सिक्रीट होगा, वो चार्ट है सबके पास. वो ही आपको पढ़ना है. यहाँ से सेंटेंसेस पढ़ते मत बैठना कि पीसीटी से क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कंफ्यूज होता है. इसमें साथ में दिया हुआ है, बिकॉज पीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन एक ही पैराग्राफ में दिया हुआ है. डू यू रिमेंबर दैट चार्ट? नहीं बनाया था हमने, नहीं बनाया था. ओके, सो यूजुअली व्हाट वी डू इज हम एक ऐसी चार्ट बना के रखते हैं. मतलब यहाँ लिखो पीसीटी, यहाँ लिखो रीएब्जॉर्प्शन, और नेक्स्ट कॉलम में लिखो सिक्रीशन. फिर लिखो असेंडिंग LOH, असेंडिंग LOH, DCT और कलेक्टिंग डक्ट. ये चार्ट से कहाँ पे क्या रीएब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पे क्या सिक्रीशन होता है, सब सॉल्व हो जाता है. सारे MCQ सॉल्व हो जाते हैं. आपको वो पैराग्राफ पढ़ते रहने की जरूरत नहीं पड़ती. ये चार्ट सब कुछ सॉल्व करके देती है. सो एट होम यू विल मेक, यू विल, या यहीं पे लिखो, लिखो यहाँ पे क्या क्या आएगा. अब हमने नोट्स में लिखा है इंडिविजुअली. You just have to pick out those points from your notes and put it in this chart. MCQ सॉल्व करते टाइम या लास्ट डे जब रिवीजन करके आओगे टेस्ट के पहले, सिर्फ ये चार्ट देख के आना. रीएब्जॉर्प्शन क्या क्या हो रहा है पीसीटी से, सिक्रीशन क्या हो रहा है. रीएब्जॉर्प्शन मतलब वापस बॉडी में देगा पीसीटी, और सिक्रीशन मतलब बॉडी वापस देगी पीसीटी. बताती. चलो क्विकली वो कंप्लीट करो. Secretion also? Yes. AA is amino acids. amino acid protein से होता है तो वो कैसे चलेगा. नहीं, I didn't get your question. जब किलोमीटर से जा रहा है वो कैप्सूल तो प्रोटीन रिटेन हो जाता है तो amino acids कैसे. अमाइनो एसिड्स आर और सिंपलर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स, तो वो जो परमिएबल रहते हैं वही पास में.
Who is Shravani Kulkarni over here? Okay. And there is one more Shravani Kulkarni. No? Same name and same surname. Yeah, the one who is absent. Okay. I was not knowing that you have the same name and same surname also. Alright. Chalo, so I hope all of you are done with this. What is active reabsorption? Along the concentration gradient. Along the concentration gradient, against the concentration. किसको एनर्जी लगेगी? एक्टिव को कि पैसिव को? एक्टिव को. And passive is along the concentration gradient. Active is against the concentration gradient. Alright? So active and passively चीजें reabsorb होगी. अब high threshold substances क्या है? What are high threshold substances? जो completely reabsorb होगी. The example is glucose and amino acids. Body is going to completely reabsorb them. High threshold. Low threshold substances क्या होंगे? Nitrogenous waste. Okay, जो थोड़े से reabsorb होंगे और maximum जाएंगे excretion के लिए. और non threshold substances कौन से होंगे? Non threshold. जो पूरे के पूरे जाएंगे excretion के लिए. नहीं, water will come in this thing. Low. एक्सक्रीशन के लिए जाएगा और रीएब्जॉर्ब होगा दोनों. ग्लूकोज एक्सक्रीशन के लिए नहीं जाएगा, पूरा का पूरा रीएब्जॉर्ब होगा. सो दैट इज हाई थ्रेशोल्ड. दोनों आएंगे. नॉन थ्रेशोल्ड में कंप्लीटली क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, जो जो चीज़ें बॉडी को नहीं चाहिए, यस, बॉडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ देम, वो कंप्लीटली एक्सक्रीशन के लिए जाएंगे, बॉडी में कुछ भी नहीं बचे. So high threshold, low threshold, non-threshold. Active reabsorption, passive reabsorption. All right. चल. Next अभी we have seen all these terms. We have seen micturition. कब urge feel होगी urination की? When the bladder is half filled, 300 to 400. What is the capacity of the bladder? Yes. Yes. Okay. So where will the signal go? कौन सी nerves लेके जाएगी signal? एफरेंट नर्व्स. किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास. वहां से मोटर सिग्नल आएगा. किसके लिए आएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच मसल्स? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच मसल्स? डेट्रूसर मसल्स, विच आर स्मूथ और स्केलेटल. स्मूथ मसल्स, विच आर मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर. तो नॉर्मल कंडीशंस में व्हेन वी आर नॉट यूरिनेटिंग, ब्लैडर मसल्स कैसे रहते हैं? Relaxed or sphincters contracted. Sphincters band, muscles relaxed. During the act of urination, which is called micturition. Micturition is voiding of urine from the body. So during the act of micturition, bladder muscles को क्या होगा? Contract. और urethral sphincters को relax. Muscles will contract, sphincters will relax. That will cause passing out of urine from the urinary bladder. Alright? But the final call is under our will, because external urethral sphincter is voluntary. You can delay the act of micturition. It is under your will, but we cannot delay it more. There is a limit to delaying it, beyond which external urethral sphincter पे भी हमारा control चला जाता है. Okay, there is a limit to which we can control. How much amount of urine is excreted per day? Page number 298. फर्स्ट पैराग्राफ. 1 to 1.5 लीटर्स. यही वैल्यू फॉलो होगी. रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स में कोई और वैल्यू रहेगी, बट वो फॉलो नहीं होगी. एनसीईआरटी वैल्यू ही फॉलो होगी. एंड इसके साथ कितना यूरिया बाहर आता है? 25 to 30 grams per day. Composition of urine we have written. What is the color of urine? Pale yellow. It is due to pigment urochrome. All right. What is the odor of urine? It is going to have a characteristic odor. Okay. Next, what is the pH? देखो, हाँ, मार्क करो वहाँ पे pH 6. Various constituents will affect the characteristic of urine. Important MCQ. Will the urine of each and every individual be same? No. What we are eating, what we are drinking, how much we are drinking, how much we are eating is going to affect the concentration of urine.
it is going to affect the composition of urine. Now urine analysis पे we saw all these terms. What is oligouria, N-uria, dysuria, hematuria, proteinuria, hemoglobin uria, ग्लाइकोस्यूरिया, कीटोन यूरिया. ग्लाइकोस्यूरिया और कीटोन यूरिया ये दोनों कंडीशंस कब मिलती हैं? यस, मार्क दैट पॉइंट ओवर देयर. पेज नंबर 298 पे फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट सेंटेंस. और यहीं पे लिखो डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज इंसिपिडस में क्या मिलता है? पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया. यहीं पे लिख के रखो बिकॉज अगेन एमसीक्यूज में डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मलाइटस कंफ्यूज होता है. डायबिटीज मलाइटस लिखा हुआ है ना कि दो कंडीशंस होती हैं उसमें, वहीं पे ये दूसरी कंडीशन लिखो डायबिटीज इंसिपिडस. ये दूसरी कंडीशन है, उससे रिलेटेड नहीं है, बट नाम सेम है दोनों के, इसलिए कंफ्यूज होता है. डायबिटीज इंसिपिडस उसमें क्या होता है? पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया. पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया मीन्स एक्सेसिव थर्स्ट. डायबिटीज इंसिपिडस कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा? और डायबिटीज मलाइटस जो बुक में लिखा हुआ है कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा? इंसुलिन. वहां पे लिख के रखो, डायबिटीज मलाइटस के साथ लिख के रखो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. चेंज मत करना दोनों को. डायबिटीज मलाइटस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एंड डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच. ऐसा लगता है इंसिपिडस बोलते समय दैट दिस मस्ट बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, बट ऐसा नहीं है. दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच. जब हम एमसीक्यू में पढ़ते हैं ऐसा लगता है डायबिटीज इंसिपिडस इंसुलिन, बट ऐसा नहीं है. ओके, इंटरेस्टिंगली ऐसे एमसीक्यूज में फर्स्ट ऑप्शन इंसुलिन रहता है, मतलब बच्चा पढ़े डायबिटीज इंसिपिडस और मार्क करे इंसुलिन, बट ऐसा नहीं है. यू हैव टू बी केयरफुल ओवर हियर. Diabetes mellitus is because of deficiency of insulin. Diabetes insipidus is because of deficiency of ADH. हाँ, ओके, चलो. रोल, हाँ, कैसे भी याद रखो. रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन. लंग्स क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं? देखो, see that paragraph. Role of other organs in excretion. Lungs remove what from the body? हाँ, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड? 200 ml per minute. And also significant quantities of water in the form of water vapor. Liver is the largest gland in the body. Do you know this? Digestion chapter में भी देखा है हमने. Liver is the largest gland in the body. It also helps in excretion of bile-containing substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs. But liver से mostly जो excretion होता है वो किस में होगा? Fecal matter में होगा. देखो next sentence. Most of these substances ultimately pass out along with digestive waste. मतलब digestive waste के जो product है, the fecal matter के साथ excretion होगा. Next, sweat and sebaceous glands in the skin can eliminate certain substances through their secretion. Sweat produced by the sweat gland is watery fluid containing what? Sodium chloride, small amounts of urea, lactic acid, etc. The primary function of sweat, mark करो, ये question था worksheet में. What is the function of sweat and sebum? Primary function of sweat is to facilitate cooling effect on the body. It also helps in the removal of some of the waste mentioned above. उसका पहला फंक्शन क्या होता है? बॉडी को कूल करता है. इसीलिए गर्मी में ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बिकॉज अंदर की बॉडी को कूल करता है जब बाहर पानी आता है. Second, sebaceous glands eliminate certain substances like sterols, hydrocarbons, waxes through sebum. This secretion, अब sebum का primary function क्या है? It provides it provides a protective oily covering for the skin. हमारी skin oily रहती है. There is a protective covering on the skin. एकदम dry नहीं रहती. विंटर में सीबम कम सिक्रीट होता है, इसीलिए ऑयली कवरिंग कम रहती है. स्किन ड्राई होती है बिकॉज एक्सटर्नल एयर में मॉइस्चर कम होता है, तो स्किन ड्राई होती जाती है. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आर ऑल्सो एलिमिनेटेड इन द सलाइवा. उसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ हीमोडायलिसिस. ओके, वी फॉरगॉट दिस, वासा रेक्टा.
याद है कौन क्या देगा, कौन किसको क्या देगा, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, वो पूरा पैराग्राफ वो इम्पोर्टेंट है, बट जैसे हमने इसको लिखा है ऐसे कौन क्या देगा, किसकी किसके साथ जोड़ी बनेगी, वो वैसा नोट्स से रिवाइज करना अच्छे से, सो इट इज लेस कंफ्यूजिंग। ओके, ये जो हमने लिखा है डायग्राम बना लो या बुक में दिया हुआ है, सो दैट वेज यू कैन अंडरस्टैंड द डायग्राम। एंड नेक्स्ट इज यूरेमिया। यूरेमिया के साथ हीमोडायलिसिस इंपॉर्टेंट। दिस वो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन लगाइए। कौन सा सीक्वेंस वाला? तो यही सीक्वेंस है। कल हमने इसका फ्लो चार्ट नहीं बनाया ना। सीक्वेंस इज दिस ओनली। ये पेशेंट है, उसकी एक आर्टरी लेंगे, उसमें से ब्लड लेंगे, हेपारिन मिक्स करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे, उसके बाद उसको डायलाइसेट मशीन में डालेंगे। यहाँ पे वो रोटेट होता रहेगा और डिफ्यूजन होगा किसका? यूरिया का। फ्रॉम ब्लड टू डायलाइसिट। डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा? ब्लड टू डायलाइसिट। ऑलराइट, ब्लड टू डायलाइसिट, क्योंकि यूरिया कहाँ पे ज़्यादा है? ब्लड में ज़्यादा है, डायलाइसिट में नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, फिर से टेम्परेचर कम करो, एंटी हिपैरिन ऐड करो और वेन के थ्रू पेशेंट में डालो। ये फ्लो चार्ट है। अगर हम लिखेंगे पॉइंट वाइज तो ये पॉइंट्स आएंगे। ये क्वेश्चन है वर्कशीट में, where you have to arrange। ब्लड में से न्यूट्रिएंट लॉस नहीं हो सकता है। ब्लड में से न्यूट्रिएंट लॉस इसीलिए नहीं होंगे बिकॉज डायलाइसेट और वो आइसोटोनिक होंगे, बाकी सारी चीज़ों। इट इज सेम एज प्लाज्मा।